अच्छे विषय पर चर्चा हुई। अगली वेबिनार हमारी रस भस्म पर होगी, नया सुनने को मिलेगा। आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वप्न दर्शन, साइकोलॉजी, ड्रीम्स। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स डे, very unique subject. It is National Dream Day and World Dream Day is scheduled on 25th September. So, two Dream Day we can celebrate on scientific manner. I would like to welcome Ms. Sutpa Vardhanji, psychologist, counselor from Kolkata. I would like to welcome Dr. Nishan Shuklaji, professor, Department of Kai Chikitsa Anandpur, and Mrs. Shashi Shortiji, ex-counselor, family counseling, Haridwar. She is also, in psychology long back. So she is also expert in psychology. So without wasting much time, I would like to request Professor V.K. Agnihotri sir for welcome address. थैंक यू प्रोफेसर पवन शर्मा जी, थैंक यू सो मच। जैसा कि हम लोगों ने अभी बताया, वी आर हैविंग दिस नेशनल ड्रीम डे टुडे, एंड फॉर दैट सेलिब्रेशन वी हैव गॉट 3 guest speakers of their own field, having a great concept over the subject. Dr. Sutapa Vardhan ji, Professor Nishan Shukla ji, Shrimati Shashi Shotri ji, and of course Sakadasu ji, I think he will also be with us. The concept behind it, that we are human beings, and it is known that we are not only social animal, we are also psychological animal. We are dealing, or we are living our life with the psychological impact also, as we have got the mental faculty. तो हमारे पास चूंकि मनस्तत्व है, और उस मनस्तत्व में विभिन्न प्रकार के घटनाएं घटित होती रहती हैं 24 घंटे में, कुछ खुली आंख से, कुछ बंद आंख से, और उनका जो इम्पैक्ट, उनका जो इम्प्रेशन, उनका जो भाव, उनकी जो स्मृति हमारे मन पटल में बनती है, और जो विशेष रूप से वो अगर वे घटनाएं अपूर्ण रह जाती हैं, तो कहीं ना कहीं रूप से साइकोलॉजिकली हमको स्वप्न में आती हैं। ऐसा एक हम लोगों का सामान्य ज्ञान है। श्रेष्ठ में तो हमारे आज के अतिथिगण ही अपनी बातें के आधार पर उसकी वैज्ञानिकता, मनोवैज्ञानिकता स्थापित करेंगे। तो सभी आदरणीय अतिथि वक्ताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हुए, जो कि हम ऑलरेडी थोड़ा विलंबित हो गए, देर से चल रहे हैं, हम इन्हीं शब्दों के साथ में कि हम उनसे बहुत कुछ सुनना, सीखना और आगे अपना ज्ञान को बढ़ाना है। हम सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और आगे कार्रवाई के लिए प्रोफेसर पवन शर्मा जी को पुनः प्रेषित करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। प्रणाम सर, आभार, बहुत बहुत आभार। Now I would like to request Madam Sutpa Vardhan ji. Madam Sutpa Vardhan ji, welcome. A very good evening and thank you. Namaskar, everybody. I am very, very delighted to be in this session today. I feel very proud because I not only get enlightened in these sessions when I hear, but I'm very happy that I'm getting a chance to talk to everybody and also share my thoughts. So as my passion, which I always talk, like I'm a counselor, I'm a motivational speaker, I am a person who wants to spread a lot of positivity. So let us first talk when we talk of dreams, it is very, very closely related to psychology as well as emotion. Why it is so? Because psychology is something which is made up of two words, which is called the psycho and the logos. So psycho means soul, emotion, minds, and logos is a subject which is dealing with science. So we can understand that psychology in some way may be very, very closely related to what we say as dreams. Now what is dreams? Dreams is something what we fantasize, we fascinate, we imagine, and also we happen to see when we are asleep. And what do we mean by we happen to see when we are asleep? When we are asleep, our brain is working, but we have to understand to what extent the brain is working. Just like how uh, after the whole day's work, when we become very, very exhausted, we get up very early in the morning, our mind is fresh. It's like a jigsaw puzzle. So everything is in place when we get up in the morning. So we are all very fresh. We all are very happy and very motivated in the morning to start working, and we plan our day that this is what we are going to do for the rest of the day. But what happens after the whole day? After the whole day, like
Sometimes we do things as per as our planning, whatever we have done, and sometimes we might not do things as per planning. And sometimes what happens that even more than what we have planned, try to do. So what happens at the end of the day? A lot which was actually fitting very well in its place in the morning has taken place. So this type of where the jigsaw puzzle is not in its shape takes place every day after the whole day, and especially the more we are working, the more we are involved in a lot of things, whether it be physical or whether it be mental, the more messy the jigsaw puzzle becomes. So what is a very important thing, like what is very very important in our life? Sleep, a healthy sleep is very important in our life. And what happens when we are sleeping? The jigsaw puzzle comes back to its place. The emotions, the thoughts, and everything that goes on in our mindset is once again arranged to its pattern. And when this arrangement takes place in the form of what we call as dreams. So dreams can be suppressed thought. Dreams can also be expressed thoughts. Dreams can be our memories, dreams can be our wishes. And also the dreams can be certain activities which probably we take care of them in a day-to-day life. So let us think like, how can it be related to psychology? Like when we talk of psychology, there is very interesting thing that we come to know of three things, like what we see in a person's mind. Do you know, like we see only the 5%, what is there in our conscious mind is just the 5% of it. Rest, and that's the tip of the iceberg. And the rest of it is below the water, which we do not see. So that's the 95% of it. So the 5% which is there on top of us, which is the conscious mind, the rest of it is the unconscious mind and the subconscious mind. So that subconscious mind, that unconscious mind sometimes comes back to us when we are sleeping in the form of dreams. And some days we see vivid picture of dream. Someday we can memorize our dreams. Someday we may not memorize our dreams. And some days, we try to memorize the dream, but it comes and goes. So we can understand that there is a lot of, factors which not only impacts what we dream, but lot of factors which also impacts how we dream. Now, coming back to the subconscious and the unconscious mind part, which is very, very closely related to psychology. There are three terms which comes very, very often and probably is a basic instinct of all psychology. That is the id, that is the ego, and that is the superego. So what is the id? Id is what we call it ID. ID means I want, I drink, I play, I say, I do. So whatever the basic needs, the basic instinct which all of us have, that I factor, the id factor, is something which is called the id. Now, so id will always pamper you to get something. So that the id is actually the conscious mind. You absolutely know what you want. You absolutely know what you don't want. Now, what is the ego part of it? The ego part is, like when I try to satisfy my id, that I want, I need to get it. I will drink, I need to get the water. So in many a times, in order to satisfy the id, the ego becomes very, very aggressive. So that is when the ego becomes aggressive, it will be dictating you that yes, I have to satisfy my id. So this is in one way where you have to go beyond your ways by which you satisfy your id with the help of your ego. Now, what happens? How can I relate this to my dreams? So sometimes it might happen that I have a id, I have a need, I have a wish which I need to satisfy. And who does it? The id does it. Sorry, who does it? The ego does it. Now, in case the id of mine is not getting fulfilled, so I have a subtle wish, I have a subtle need, or I have a subtle despair that I am not getting my id getting fulfilled. So that is where, I start dreaming. I have a subconscious wish. I have a, maybe an unconscious wish also that I need this, but I'm not able to get it. So while we are talking of id and ego, there is something which is called the superego. And what is a superego? Superego is a guardian. Superego will tell you like what is right, what is wrong. Superego helps us to balance.
So sometimes the thoughts of the superego also comes in our mind, which guides us in our dreams. So sometimes I remember, like when we dream, when we talk to little children, we talk of a good angel and a bad angel. So when we talk of a good angel, that's the superego. So that's the superego we try to teach little children that you there will be situations when you want to have the ice cream very badly. Your friend is having an ice cream, your mother is telling no, you cannot have the ice cream because you are having a cough and cold, but you want to have the ice cream. So that's where the id will tell you that I want the ice cream, I am hungry. The ego will tell you I must have the ice cream. In fact, the ego will tell you to snatch the ice cream from your friend. But what will the super ego tell you? The super ego will tell you no. Your mother is telling you not to have the ice cream because you're not well, and also snatching away the ice cream from your friend is not good manners. So all these ego, super ego, which are very very important terms in psychology, plays a very very important role while we do a while we dream. So in order to repeat, so the dream comes to us, which is something which is there in our mind, in the subconscious mind, in the unconscious mind. And human being, as I said, the major part of the iceberg is what we do not have. But these are all suppressed thoughts which are there in our mind, thoughts which are wish list, which we want to bring it in our mind, and these are wishes which comes in our mind. Now, coming to a very interesting factor, the dream analysis. Now, dream analysis is something which which obviously is taken care in the level of a psychology, but that depends on the situation of the person's mind, the what state the person is having. So dream analysis is sometimes a therapeutic way of analyzing a person's cause. So if a person is very sad, okay, and he is dreaming of a very happy moment, and he comes to his psychologist or he comes to his counselor and talks about the counselor about a very happy dream. So will the counselor tell the person that no, this is not a dream, this is a dream, so it cannot be true? But what will the counselor tell the person? So you are dreaming. So why don't you appreciate the dream? Why don't you love your dream? Why don't you celebrate your dream? So in this way, sometimes dreams also comes as a solace, comes as a boon in people's mind, and spreads the factor of motivation in a person's mind, factor of happiness in a person's mind, and the factor of feel good factor. Similarly, the other way around, sometimes dreams also come in our way as a bad omen. So sometimes people feel very scared that why have I dreamt this? Is something wrong going to happen to me? Is something devastating going to happen to me? So then it's the other part of the psychologist to talk to him and make him logically understand that what is the real reason why we are dreaming. What can be the logical essence behind the dreams? So that's the essence of the dreaming part related to psychology, which I would want to iterate to all my friends who is listening to me today. The dreams are excellent fantasies we have in our mind. Dreams are beautiful fairy tales we can see while we are asleep. Dreams are beautiful wishes, and also our passion which comes in our mind. So let us enjoy dream and make ourselves happy. Thank you very much. Great, madam, great. Excellent. You have really means highlighted all the aspects of dreams, including dream analysis. Great. Please do join every day. This is my request. डॉक्टर शैकत बसु को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा. शैकत जी कुछ 2 मिनट बोलेंगे. Dr. Shaikat Kumar Basu, would you like to say something? Or after Nishant ji? I would like to welcome Professor Nishant Shukla ji. Welcome, sir. नमस्कार पवन शर्मा जी, नमस्कार अग्निहोत्री सर और समस्त गणमान्य व्यक्तियों को सादर प्रणाम करते हुए, और आज उपस्थित मेरे गुरु डॉक्टर आनंद चौधरी सर को नमन करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए अपने वक्तव्य को यहाँ पर शुरू करने की आपसे अनुमति चाहता हूँ. साइकोलॉजी की जब बात हो रही थी और खास करके स्लीप में
सॉरी, स्वप्न की बात हो रही थी, ड्रीम्स की बात हो रही थी। तो ड्रीम्स का एक इम्पोर्टेंट रोल पेशेंट एग्जामिनेशन में भी है, उसकी फिजियोलॉजी में भी है, और उसके असेसमेंट में भी है। तो पहली चीज, स्वप्न जो है ये हम केवल जो है वो रात में आते हुए स्वप्नों की ही विशेष करके बात करते हैं, क्योंकि जब इसको समझना हो तो पहले हमें स्लीप फिजियोलॉजी को आयुर्वेद से थोड़ा जो है ये समझना पड़ेगा। आयुर्वेद में स्लीप की फिजियोलॉजी की शुरुआत होती है यदा तो मनसि क्लांति कर्मात्मानः क्लमान्विताः विषयेभ्यो निवर्तन्ति तदा स्वपिति मानवम। और इस पूरा जो है इसके संदर्भ को समझाते हुए चक्रपाणी जी ने एक चीज जो है ये बताई कि मन की गति कहाँ कहाँ पर होती है। निरेंद्रिय प्रदेशे ते जाता तदा स्वपिति मानवम। तो जब निरेंद्रिय प्रदेश में मन की गति होती है तब उस समय व्यक्ति जो है ये सोता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी है कि जो स्वप्न को इंड्यूस कर निद्रा को इंड्यूस करने में और ड्यूरिंग द स्लीप मन की गति अलग अलग इंद्रियों के संबंध में ये आती है, पर मन निरेंद्रिय प्रदेश में होने के कारण पूरा जो है ये ज्ञान नहीं हो सकता है। और ये कहीं ना कहीं इसको हमें पूरा एक्सप्लोर करने की, इसको थॉरोली स्टडी करने की जरूरत है। तो यहाँ पर से मैं अपने विषय को थोड़ा जो है वो मूव करूंगा। जब हम बात करते हैं स्वप्न की, तो स्वप्नों को में 5 ऐसे स्वप्न हैं कि जो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो पूरे दिन में बात करता है, देखता है, सोचता है, ये सभी पर आधारित है। जैसे कि दृष्ट स्वप्न है, श्रुत स्वप्न है, अनुभूत स्वप्न है, पार्थिव स्वप्न है और भाविक स्वप्न है। ये सभी चीजें ऐसी है कि जो व्यक्ति की साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस के आधार पर, थॉट प्रोसेसेस के आधार पर ये पूरा जो है ये डिस्क्राइब हो जाता है। कुछ ऐसी चीजें जो दिन में ट्रैवल की हो तो वो स्वप्न में दिखती हैं, कुछ बातें सुनाई देती हैं। तो ये अलग अलग प्रक्रियाएं हैं कि जिसके कारण व्यक्ति को वही चीजें स्वप्न में दिखाई देती है। और जब मन विशेष करके निरेंद्रिय प्रदेश में होता है तब ये स्वप्न जो है वो विशेष करके देखने मिलते हैं। और दूसरा जो है ये एक पक्ष जिसको आयुर्वेद ने काफी सारा एक्सप्लोर किया है फॉर द डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिसऑर्डर्स। तो ऐसी कंडीशन जहां पर साइकोलॉजी के साथ साथ उसकी इफेक्ट्स बॉडी पर देखने के लिए ये दोषिक स्वप्न है, जिसमें कुछ एक रोग जो है इसमें स्वप्न के आधार पर इसके निदान और उसकी गंभीरता अलग अलग देखी जाती है। जैसे कि रक्तपित्त में है, तो रक्तपित्त में स्वप्न में व्यक्ति को लाल रंग, पीला रंग ये विशेष करके दिखता है। गुल्म में जैसे थ्रोनिक क्रीपर्स दिखाई देते हैं। कुष्ठ में नग्न होकर के घी लगा करके स्नान वगैरह को देखने को मिलता है। यक्ष्मा में विशेष करके ये बात रखी है। यक्ष्मा में जब कभी भी व्यक्ति को पशुओं के साथ उसको घूमता हुआ दिखता है, तो ये सारी चीजें ऐसी है। प्रमेय में विशेष करके ये है कि प्रमेय में स्नेहपान के साथ ये लक्षण जो है ये देखने को मिलते हैं। ये सभी चीजें रोगों की असाध्यता को बताते हैं। ये कहीं ना कहीं ये असाध्यता को द्योतक इसलिए है कि जो शरीर के चेंजेस हो रहे हैं, दोष धातु मल में जो चेंजेस हो रहे हैं वो इफेक्ट करते हैं सत्व रज और तम पर। और ये सत्व रज और तम पर की जो दृष्टि होती है या फिर सत्व रज तपस में जो चेंजेस होते हैं वो स्वप्न के रूप में हमको दिखाई देते हैं। और इस प्रकार से स्वप्न की एक अलग प्रक्रिया है जो हमें रोग को समझने में, रोगी को समझने में और उसके अनुरूप उसकी चिकित्सा करने में हमको लाभप्रद हो सकते हैं। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। समय भी काफी हो गया है। तो
इस चीज को देखते हुए इस विषय पर थोड़ी और चर्चा हो सकती थी, पर वो बात। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी द टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच निशांत जी। अग्निहोत्री सर। बहुत बढ़िया आपने बताया, बहुत से रोग से बांध के भी आपने चर्चा की। हम समय को देखते हुए अगले वक्ता को बुला लेते हैं, फिर कंबाइंड चर्चा करेंगे। तो शरकत बसु जी को आपने इनवाइट किया था, शायद वो जुड़े हुए तो हैं, नहीं डॉक्टर है? शरकत कुमार बसु, आर वी ऑडिबल टू यू? यस यस, हाँ, मैं थोड़ा वेलकम वेलकम। ड्राइविंग में हूँ इसलिए कनेक्ट अच्छा नहीं कर पाया। हाँ Sorry. वेलकम। Thank you. I think I really appreciate the webinar today because it is so important. We all of us every day is having some dream, either positive or negative, which may reflect the fears inside us or plans that we may have. I am not a I'm not a psychologist that I can define, or explain. But from a literary point of view, I think it is for dreams that we are living. It is for dreams, that things that we cannot achieve in life, but it is the dream that is keeping us going, thinking that someday or other maybe this beautiful thing can happen to us. Or if we are having a negative dream, sometimes when I get up and I had a negative dream, I'm saying, thank God, it's just a dream. It didn't happen in my life. I believe that it is in your subconscious brain that what we think about, it reflects in our brain, and because we do not have control at that particular point of time, we could see in a form of a movie. And sometimes you could even, like, Kekule was a great chemist who discovered the structure of benzene, and he was working for a long time on deciphering the structure. And one day, as we read in the book, that he had a dream that two snakes were grabbing each other by holding at their tails. And this helped him in discovering the hexagonal structure and the resonating structure forms of benzene, which started the branch of organic chemistry, and a new branch of chemistry emerged. It was an outstanding, remarkable discovery that led to, but he had the structure seen in the dream. So many psychiatrist I have seen that has analyzed and suggested that it was in his mind. He was thinking point by point about it, and it was the reflection of that two snakes that gave rise to that hexagonal three-dimensional structure in front of his brain, that he was able to decipher this structure. So it is, I believe, I am not an expert in this area, but I believe it is our suppressed thoughts, feelings, expressions, anger, despair, sometimes that is reflected in our thoughts, and it's what we see in a dream. And unless it is impacting your health, and it is not that very negative serious dreams that you are getting scared, or you are feeling very depressed, or very sad things that you are seeing, or very morbid things that we see, all see positive and negative dreams, that I would say. But if unless it is a serious disease like symptom, I think dreams are a divine gift from the Almighty, which helps us keep going. For many things that we cannot achieve in life, at least we could see that in our dream, that that you are traveling somewhere, or you have reached somewhere, or maybe you are talking to someone who has passed away. Maybe it's very close relatives, sweet relations that you had, and it's no longer possible for you to reach them because they are no longer as a part of this mortal world. But in the dream, in your subconscious mind, you are able to reach them. So what a wonderful feeling in that you had a chance to talk to your passed away grandfather or dad or very close friend that you will never get a chance to meet in your real life. So sometimes we see, as the poet says, that let me be in the dream for the time, do not disturb me, so that I continue to enjoy the time that I am connected with that subconscious world, that helps me to get the earnest pleasure that I won't get in this mortal world. So with this, I thank and appreciate the efforts of Ayush Samriddhi to bring in more innovative topics that impacts our life, and we all want to know about various aspects of this. Thank you very much, and I greatly appreciate for inviting me to this platform. Thank you very much. Thank you. If Dr. Anand Chaudhary ji is comfortable, I would like to invite Vaidya Prajapati ji and Anand Chaudhary ji for his dreams, concept about dreams. आदरणीय अग्निहोत्री सर, आप म्यूट हैं।
बड़ा अच्छा बताया, शेखर जी ने बतलाया, सभी लोगों की चर्चा आई बहुत अच्छी। और ये सत्य है जगत जी कि ने उसका पॉजिटिव एक्सपेक्ट बताया, बहुत सुंदर। ये बहुत सुंदर बताया। और देखिए, ड्रीम तो लोगों को हुई है, लेते हैं, और कितने सार्थक हैं कितने नहीं है ये अलग चीज है। अब सीता जी वन में होती हैं और एक रात उठ के और राम जी को बतलाती हैं कि आज हमने अपनी माताओं को एक दूसरे रूप में देखा। राजा दशरथ की न रहने के बाद, तो वो जो है उनको ड्रीम में आ गया था, जबकि वो इतनी दूर थी, मीलों दूर थी, कि राजा दशरथ जी नहीं रहे, तो अपनी माताओं को उन्होंने दूसरे रूप में देखा, ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं। और आगे जो सुंदरकांड में तो बड़ा गजब का पूरा वर्णन ही त्रिचा जी के मुख से कहलवा दिया तुलसीदास जी ने, कि सपने बानर लंका जाली, जात धान सेना सब मारी, नर क्या क्या है, आरूढ़ ऐसा, खर आरूढ़ नगन दसीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। ये चीज जो आई उन्होंने कहा, तो ये चीज जो घटना घटित होने को होती है, उसके बारे में भी कुछ कुछ इंट्यूजन हो जाता है, या कुछ आदमी सोचता रहता है, वैसा होता है। एक अपने ऊपर हम बिल्कुल। बताए, हमारे फाइनल ईयर के एग्जाम हो गए, हम अपने घर एग्जाम से होकर स्कूल से फरुखाबाद पहुंच गए, और रात को 1 बजे एकदम जाग के, अचानक से जाग के बैठते हैं, सपना आया कि साहब हम लेट हो गए क्लास में, हमारे चरकाचार्य जी आदरणीय के डी मिश्रा साहब जो पर्चा बांट रहे हैं, 10 बज गया है और हम क्लासरूम के अंदर पहुंच नहीं पाए। वो घटना घटित हो चुकी होती, फिर भी उससे दिमाग से एक इम्प्रेशन बना रहता है, हमने अरे ये तो हमारे एग्जाम खत्म भी हो गए, अब घर आ गए, लेकिन वो एक इम्प्रेशन दिमाग में रहता है। तो सपन की साइकोलॉजी यही होती है कि या तो हम किसी कार्य से प्रेजुडिस रहते हैं, या भयभीत रहते हैं, या एक मेरा इस मामले में थोड़ा सा जी एक ऐड करना चाहता हूँ सर आपकी बात जी में। बताइए बताइए। जी हम लोग आत्मा है, जाने जी कितने जन्म गुजार के आए, जी उनकी स्मृतियां आत्मा के संग रहती। कभी यस। कभी कभी ऐसे स्वप्न आते हैं जो ना हमने कभी जिंदगी में देखे हैं, ना हम उनकी सोचते हैं, लेकिन अचानक से एक स्वप्न आ जाता। हो सकता जी है वो कभी हमारे पुराने जन्म में घटित हुआ हो, मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसे आभास भी स्वप्न में आते हैं कि जो शाम को हुआ तो कभी कभी सोचते रह जाते, अरे ये तो सपने में देखा था। तो ये हाँ बड़ी अजीब अजीब सी बातें हैं। ये देखिए, कॉम्प्लेक्स माइंड की चीजें ईश्वर के हाथ में है। जी लेकिन उनने, शेखर जी ने बिल्कुल सही कहा, यदि ड्रीम्स नहीं होते तो हम नहीं होते। ड्रीम्स है इसलिए हम हैं। ये बिल्कुल सही कहा अग्निहोत्री साहब। हमारी शायद कभी ड्रीम स्वप्न लिया हो कि हमारी पढ़ाई पूरी होगी, नौकरी लगेगी, शादी हो गई, तो हम भी संतान के पिता बनेंगे, तो एक स्वप्न तो लेके चलते ही हैं। स्वप्न होते हैं तो जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, बनती है। लड़का कलेक्टर बने, लड़का डॉक्टर इंजीनियर बने, सब है, तो एक हमारी स्वप्न की स्थिति है पूरी का वो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सपने छोटे मोटे बहुत क्षणिक होते हैं, कि सोते होते ख्याल आया कि अरे हमारा जो है पर्स गायब हो गया, जेब में पर्स नहीं है। ना पता लगा पैसा रहे नहीं तुम रोकना। सो रहे, हम तो सो रहे, तो सब कुछ ठीक है। तो कुछ होती है, कुछ ना कुछ फ्री ऑक्युपाइड माइंड होता है, तो कोई घटना जो घटित हो चुकी है या होने को होती है, या जैसा रहता है इन्वॉल्व, जो आदमी ओवर बिजी रहता है, ओवर टाइट रहता है मस्तिष्क, तो ऐसी कुछ घटनाएं घट जाती हैं। आज सब लोग जुड़े और बड़े अच्छे से हमने अपना वक्तव्य दिया साइकोलॉजी का। बाद में खोखर साहब का भी वो आ रहा था, क्या नाम, फोन आ रहा था, बात नहीं हो पाई उनसे। तो जो भी है, स्वप्न से कोई नहीं वंचित रहा है, कभी न कभी जिंदगी में सपने जरूर देखे होंगे, अच्छे खराब। वो तुलसीदास जी कही गए हैं कि जो सपने सिर काटे कोई शशि दिन श्रोत्री जागे न जी कोई जुड़ सोए। चुकी। अच्छा अच्छा, शशि मैं देख रहा था लिस्ट में। अच्छा, कहाँ है शशि श्रोत्री जी, स्वागत है। 2-3 बार निकल चुकी, आ चुकी, पूछ रही थी क्या भाई कितना समय हो गया। चलिए, हाँ, उनको ब्रह्म आमंत्रित मंच कर लेते हैं। संचालन की, आदरणीय अग्निहोत्री जी से मंच संचालन की प्रार्थना। अच्छा अच्छा, मैं श्रीमती शशि श्रोत्री जी का मंच पर स्वागत करता हूं, और उनसे निवेदन है कि अपना वो माइक अनम्यूट कर लें, और इस स्वप्न की जो मनोवैज्ञानिकता क्या है, इसके बारे में अपने उद्बोधन के द्वारा हम लोगों को लाभान्वित कराएं। आप माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपका स्वागत है। हालांकि देर बहुत हो चुकी है, निर्धारित समय से लगभग 50 मिनट हम लोग लेट हो गए हैं। हाँ, स्वागत है, नमस्कार। पहले तो आप जगी नमस्कार। हुई हैं, आप जगी हुई हैं, स्वप्न में नहीं है, इसलिए आपका और आभार है। और क्या है, हाँ, 10 के बजाय 11 बजे।
जी बताइए। आज हमारे आप लोगों ने बहुत ही अच्छा विषय रखा, स्वप्न मनोविज्ञान। सबसे पहले मैं आप लोगों को नमस्कार करती हूँ, जो भी लोग जुड़े हुए हैं सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं बताना चाहूंगी कि हमारे मन के दो भाग होते हैं, चेतन और अवचेतन। तो जब हम साधारण नींद में होते हैं तो हमारा चेतन मन तो सो जाता है, लेकिन जो अवचेतन मन होता है वो जागृत रहता है। और सम्मोहन की निद्रा जब होती है, जब हम किसी को सम्मोहित करते हैं, तो उसका चेतन तो सो जाता है, लेकिन अवचेतन मन जो होता है उसके द्वारा हम उसके अंदर की बातों को जानने का प्रयास करते हैं। और या यूं भी कह सकते हैं कि अवचेतन मन चेतन मन से अधिक ज्यादा सक्रिय रहता है जिस समय हम सो रहे होते हैं। चेतन मन में रहकर हम दैनिक कार्यों को करते हैं, और जागते हुए भी कुछ लोग काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि, और स्वप्न भी दो तरीके के होते हैं, दिवा स्वप्न और सुप्तावस्था स्वप्न। लोग दिन में भी स्वप्न को देखते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर क्या होता है, लोग इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो काफी लोग खुद ही खुद में बात करते रहते हैं, और जैसे कि बोलते रहते हैं अपनी बात को, और वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं उस तरीके से बोल बोल के। ये होता है दिवा स्वप्न। दिन में स्वप्न देखते रहते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि दिन में जो स्वप्न हम देखते हैं, हमारी इच्छाएं तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं कर पाते। तो वो इच्छाएं जब हम सोते हैं तो चेतन तो सो जाता है, लेकिन अर्ध चेतन जो होता है स्वप्न हमारा, वो आगे के लिए उसमें वो बातें आती जाती हैं, और वो हमें स्वप्न के रूप में दिखाई देती हैं कि हमने हवाई जहाज चलाया, हमने ये किया, हमारे पास बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है। तो ये सब हमारे हमें जो है अर्ध चेतन। और शायद ऐसा भी है कि 95% लोग जब जगते हैं तो वो अपने सपनों को भूल जाते हैं, तो उनको याद नहीं रहता कि हमने रात को क्या स्वप्न देखा था। और स्वप्न में मनोवैज्ञानिक फ्रायड थे, उन्होंने बताया कि स्वप्न मानसिक अनुभव है हमारे। अगर हमारी ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो इंसान मानसिक तनाव में भी आ जाता है। और वैसे स्वप्न देखना तो निरर्थक ही होता है, लेकिन फिर भी स्वप्न देखते हैं लोग, और स्वप्न देख के अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। स्वप्न हमारी दिनचर्या से भी संबंधित होते हैं, यानी हम जो देखते हैं सुनते हैं वही हमें रात को दिखाई देते हैं। अथर्ववेद में काम देवता को स्वप्न का सर्जक कहा गया है। और जहां तक ये स्वप्न हम देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या देख रहे हैं। कभी कभी लोगों को दिन में भी बिना बात कुछ भी बोलते हुए देखते रहते हैं, तो वो अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। इससे ज्यादा मैं आप लोगों को इतना बता चुके हैं। अभी वो शुक्ला जी आए थे, वो कौन आए थे, मैडम थी, काफी कुछ बताया उन्होंने। लेकिन मैं तो अपनी कविता सुना सकती हूँ, उसमें भी आपको हंसी आएगी अगर कहें तो। म्यूट। कविता आपने स्वप्न में लिखी है या जागृत अवस्था में लिखी है? स्वप्न जो नहीं, कविता तो नहीं, है, लेकिन वो आपको दिखेगा कि वो बाद में नहीं स्वप्न ही बन जाती है। आपने स्वप्न में लिखी है कि हमें आज साइकोलॉजी पे बोलना है, अच्छा। या जागृत अवस्था में लिखी है? सोते नहीं, मैंने सोते स्वप्न स्वप्न में क्यों लिखूंगी। सोते सोते लिख दी हो कहीं हवा। आपने जी, सुरेश सुनाइए शर्मा जी सुनाइए की एक कविता सुनी होगी सुनाइए कि, सुनाइए। नहीं फिलहाल मैं सुरेश शर्मा जी की बात बताती हूँ आपको कि उन्होंने सुनाई थी एक बार। मेरे धोरे बापू आयो, बोलो बेटा तेरी शादी के बारे में कोई आयो है। अच्छा। शादी में नगद 60,000 रुपया लगावेगा, लड़की थोड़ी जिनी मोटी जी है, दिख जावे तो हाँ भी भर दीजिए। तो लड़का बोला जो 60,000 रुपया ही से शादी करनी है तो लड़की ने खुद देखूंगा। तो लास्ट में उसमें ये दिखाया था कि वो ट्रेन के डब्बे में बैठा था, और ट्रेन झटके से रुकी तो उसकी आंख खुली, और उसने कहा मैं तो टूल बॉक्स में पड़ो पड़ो
क्या स्वप्न देखता रहा कि स्वप्न में ही शादी भी करवा ली। इसी टाइप से मेरी ये कविता है। वाह भाई वाह वाह, सपने में शादी। इसकी हेडिंग ये होती है, तो सपने की शादी। अपनी सुनाइए अपनी। हाँ, मिलते हैं हर वक्त हम ख्वाबों के सहारे, मिलते हैं हर वक्त हम ख्वाबों के सहारे, दूर रहते हैं हम जितना नदिया के दो किनारे, दूर रहते हैं हम जितना नदिया के दो किनारे, जब नींद की आगोश में हम छिप के चले जाते हैं, जब नींद की आगोश में हम छिप के चले जाते हैं, तब पलकों की मुंडेर पर बन आते हैं वो सितारे, तब पलकों की मुंडेर यानी स्वप्न तब पलकों की मुंडेर पे आते हैं जब हम नींद के आगोश में हो जाते हैं। तो हंसना मत मेरी कभी लास्ट में ही आपको अच्छी लगेगी, शुरू में तो ऐसे ही है। हाँ, ओ प्रिय, इसमें तो ओ प्रिय तुझे क्या मानूं, ओ प्रिय तुझे क्या मानूं, सपने संजोए तेरी आंखों को देखकर, सपने संजोए तेरी आंखों को देखकर, दिल में तराने बजे तेरी बातों को सुनकर, फिर आने लगे नए नए ख्याल तुम्हारे दिन रात, और तुमने दिल तोड़ दिया मेरा ना बोलकर, तुमने दिल तोड़ दिया मेरा ना बोलकर, ओ प्रिय तुझे क्या मान। कवियों और शायरों से सुना था, कवियों और शायरों से सुना था मैंने, इश्क की कोई उम्र नहीं होती, कवियों और शायरों से सुना था मैंने, इश्क की कोई उम्र नहीं होती, मेरे टूटे दिल में एक बिजली सी जगी, मेरे टूटे दिल में एक बिजली सी जगी, वह बिजली मेरा भ्रम निकली, क्योंकि तुमने फिर से दिल तोड़ दिया मेरा ना बोलकर, ओ प्रिय तुझे क्या मानूं, ओ प्रिय तुझे क्या मानूं, तुमने कहा था मैं प्यार भी करूंगी, जन्म जन्म तक साथ रहूंगी, ओ प्रिय तुमने कहा था मैं तुझे प्यार भी करूंगी, जन्म जन्म तक साथ भी रहूंगी, पर तू मुझे चांद की सैर भी कराएगा, मैं सोच में पड़ गया तेरी बात को सुनकर, मैं सोच में पड़ गया तेरी बात सुनकर, तो तूने फिर से बोल दिया और मेरा दिल तोड़ दिया, प्रिय तुझे क्या मानूं। फिर आगे बोला, प्रिय तुझे क्या मानूं, बेहाल हुआ जा रहा है मेरा, मैं जोर जोर से बुला रहा हूँ, बेहाल हुआ जा रहा हूँ, मैं जोर जोर से बुला रहा हूँ, जिंदगी बहुत लंबी है मेरे पास आओ, जिंदगी बहुत लंबी है मेरे पास आओ, मैं प्यार में मैं प्यार में सौगातें देता जा रहा हूँ, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए तुम्हें, घर बंगला गाड़ी जेवर, जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ, जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ, मेरी चिल्लाने की आवाज सुनकर, मेरी चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी माँ आ गई, मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी माँ आ गई, उनकी आवाज से मेरी आंख खुल गई, उनकी आवाज से मेरी आंख खुल गई, मेरी माँ आवाज दे रही, मेरी माँ आवाज दे रही, ओ नाच पिट्टे ये क्या तूने लव लव लगा रखा है, ओ नाच पिट्टे ये क्या तूने लव लव लगा रखा है, आसमान से उतर धरती पे आजा तेरा बापू बुला रहा है, आसमान से उतर धरती पे आजा तेरा बापू बुला रहा है। मैं भी जागा, मैं भी जागा और सोचने लगा, मैं भी जागा और सोचने लगा, अरे ये सपना था, अरे ये सपना था, और मैं हंसा और सोचने लगा, क्या मैं सपने में भी इश्क लड़ा बैठा, क्या मैं सपने में भी इश्क लड़ा बैठा, क्या मैं सपने में भी इश्क लड़ा। तो ये होता है कि हमारे मन की कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो हमें सपनों में दिखाई देती हैं। तो ये कविता मैंने लिखी थी। आप अरे गजब लिखी, सपने में पूरी स्टोरी। अरे गजब गजब गजब। अरे मतलब अर्थ तो बाद में समझ में आया, अर्थ तो आखिरी में समझ में आया। तो गजब बोले, गजब बोले, बहुत बहुत अच्छा। आदरणीय गुरुदेव लक्ष्मीकांत द्विवेदी सर से उपसंगार ले लेते। अग्निहोत्री सर। जी द्विवेदी सर। सादर आमंत्रित करते हैं कि हमारी इस सभा के अतिथियों का उत्साहवर्धन के लिए अपने आशीर्वचन देने की कृपा करिए। प्रणाम सर।
नमस्कार सभी विद्वद्वर को। और स्वप्न के ऊपर आज जो चर्चा हुई, तो वास्तव में मानसिक भाव है, मन है। अब हम जो आयुर्वेद में पढ़ते हैं वो तो मन एक है, अणु है और कणाद के परमाणु की तरह, किंतु आज वैज्ञानिक युग में जो मन है वो विभाज्य है। चेतन अवचेतन कई तरह के खंड विखंडन हो गए, तो स्थिति दूसरी बनेगी। किंतु हम तो शास्त्र के क्रम से देखते हैं तो सब निद्रा में सदा स्वपतिमान व युक्त स्वप्नावबोधाय, तो ये स्वप्न के भी सोने के अर्थ में भी स्वप्न है। और स्वप्न दर्शन जो है उसको भी हम कहते हैं। तो जो स्वप्न आते हैं उसके आधार पर प्रकृति निर्धारण भी होता है, जैसा कि बताया था शुक्ला सर ने। और जो पूर्व वक्ता साइकियाट्रिस्ट थे उन्होंने भी कुछ बोले हैं, काफी कुछ कह चुके। मैं तो इतना ही जानता हूँ साहब, स्वप्न के भेद हैं, मन तो एक ही है, किंतु स्वप्न के भेद कई तरह के होते हैं। तो 7 तरह के हम लोग पढ़ते थे, तो दृष्ट श्रुत अनुभूत प्रार्थित कल्पित, इस तरह से। दो आप लोग तो जानते होंगे, तो मैं अभी किताब देखना पड़ेगा मुझे, किंतु हाँ 7 तरह के होते हैं। और नहीं, उद्धव जी को तो और अच्छा पता था। उदो मन नाही 10-20, एक होतो तो गयो श्याम संग। वहां भी मन की एक ही को मन माना है। मन एक ही है। और जहाँ तक बात है सचेतन अचेतन, ये सारे बात जो है वो किसी चीज को समझने समझाने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं। और जहाँ तक बात है स्वप्न दर्शन से, शिक्षा के समय दीक्षारंभ के समय भी कैसा स्वप्न आया, उसके आधार पे आगे क्या परिणाम आएगा उसको भी देखते हैं। तो रसशास्त्र में भी स्वप्न दर्शन वाली बात आती है। और ऐसा ही फिर निधि दर्शन होता है, तो सारा कुछ अंजन भी ऐसे बने हैं जिससे अदृश्य चीजें दिखने लग जाती है। तो इस तरह से जो विषय है वो काफी रोचक और लंबा है। पहले भी चर्चा हुई थी ज्योतिष शास्त्र के आधार पे भी। तो इसके आधार पे ये है कि सब जो स्थिति है वो ये सब अपने मन में जो हम लोग कल्पना करें, तो चाहे जागते हुए करें या नींद में करें, जो परिणाम दिखते हैं उसके आधार पे परिणाम या उसका अनुरूप हम लोग विचार करते हैं कि सब हवा में उड़ना स्वप्न में, तो सब कई जंजाल हैं, तार वगैरह है इलेक्ट्रिक और उस तरह से। तो सब सपने ज्योतिषाम दृष्टा या सूखी नदी में तैरना, इस तरह के स्वप्न जाते हैं, उससे हम लोग प्रकृति तय करते हैं। ये सब आप लोग अगर आग लगता हुआ देखते हैं सपने में, मतलब इसका मतलब आपकी प्रकृति पित्त की है। तो कई बार इस तरह की स्थिति बनती है कि सब निदान में शरीर की प्रकृति निर्धारण में भी स्वप्न के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज की दोनों चर्चाओं में सारभूत रहा। और रहा सवाल ये कि सब समय का थोड़ा सा रहता है, जब अधिक वक्ता होंगे तो समय तो क्रॉस होता ही है। तो इसी के साथ में अपनी वाणी को धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे दोनों ही वेबिनार अच्छी हुई और समापन समय से हो गया, समापन 11 बजे हो गया। ये फिर भी ठीक रहा। एक बड़ी हो गई, एक छोटी हो गई। समापन बिल्कुल सही समय पर हो गया। सभी अपने अतिथि वक्ताओं का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार। तो कौन सी सीरीज है बता दीजिएगा। कल कल तो मंगलवार है। कल स्वस्थ व्यक्ति तो बुधवार को होगी। आपके स्वस्थ व्रत बुधवार को है ना सर? बुधवार को है। तो आप बता दीजिएगा कल तक मेरे को। कल शाम में तो एक शादी है, जबरदस्त शादी क्या है। हाँ, कल तो शाम एक शादी है 9-10 बजे। अब दिन में विवेकानंद के स्वामी परमहंस जी की, रामकृष्ण परमहंस जी की, उसमें भी समारोह में जाना है दिन में। तो मेरी मेरे तो 2 स्पीकर तो रेडी हैं।